Recording in progress. तो मेरा नाम बिमला प्रसाद दास है. I'm your host for the next 6 days. Um, and we have, I believe, आप सब यहाँ पर um, गीता का बेसिक, भागवत गीता का एक बेसिक समरी, एक कैप्सूल कोर्स, एक या इंट्रोडक्शन के लिए यहाँ पर आए हैं. अ, मुझे ऐसा बताया गया था कि अ, जो मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन जो होगा, that's gonna be basically Urdu English. So मैं बेसिकली, आप मुझे देख के, इट्स लिटिल might be a cultural readjustment. I'm from India, and next 1 घंटा we will get into uh, a basic dialogue on the basic spirit of Bhagavad Gita, the basic spirit of Bhagavad Gita. So, if you have any questions or comments in between, feel free to interact. Okay, feel free to interact. We are here like for that kind of interaction. So, without further ado, let's uh, proceed. तो ये बेसिकली आप लोगों को ये इनविटेशन मिला होगा, and this is what we will be having for the next 6-7 days. The whole journey basically is a journey of happiness. जो बेसिक, जो भागवत गीता का जो बेसिक मैसेज है, जो मूड है, that's how people can be happy. Okay. That is the basic mood of Bhagavad Gita. That's the basic purpose of Bhagavad Gita. That how everybody can be happy. There can be many ways. So that quest, वो जो हमारे, जो वो जर्नी है, वो जो सफर है हमारा, so वो यहाँ से शुरू होता है. So of course Bhagavad Gita जो है एक बहुत बड़ा टॉपिक है, but we will try to summarize in 6-7 days with the 6-7 hours. See how it goes. Okay. So I wish everyone good luck, कि हमारा ये सफर जो है ये फ्रूटफुल हो. And then of course इसके बाद हम will put God on trial. Okay. So we'll be putting God on trial, like whether he exists or not, if he is what, if he at all exists, what is his role. Okay. So all those things. Then we will proceed. जो भागवत गीता का एक बहुत central theme है, our identity. Okay. So there can be different ways like the identity can be understood. So हम वो उसके भी जो अलग अलग पहलू जो हैं, अलग अलग मरहलों से गुजरेंगे, and हम देखेंगे. देन एक बहुत ही अहम सवाल जो लोगों को जो है, जो बहुत परेशान करता है, या वो लोगों के लिए बहुत अहमियत रखता है, वो है व्हाई बैड थिंग्स हैपन टू गुड पीपल. या हम इस सवाल को अगर पलट दें तो व्हाई गुड थिंग्स हैपन टू बैड पीपल. ओके. सो भागवत गीता का क्या टेक है इसको लेके, वी विल डिस्कस दैट. we'll try to come to that stage by stage, and then further we will see our onward journey. आगे क्या करना है, what to make of what we have learned. Okay. So this is how we are planning to move forward. Okay. Uh, so let's go like first things first. Okay. Quest for happiness. So इस दुनिया में ऐसा शायद ही कोई लोग मिलेंगे, यानी सेन सेन, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इनसेन पीपल, बट सेन पीपल, ठीक है ना, जो जिनका दिमाग जो है वो अपनी जगह पे है, और वो खुशी की तलाश, खुशी की तलाश, आनंद, हैप्पीनेस की तलाश में ना हो. ठीक है ना, जिसे जिंदगी में लुफ्त, मजा
नहीं चाहिए। सो शायद ही कोई ऐसे सेन लोग होंगे। एवरीबody इज लुकिंग फॉर हैप्पीनेस जनरली, लाइक वी कैन सेफली अज्यूम दैट, लाइक स्टार्टिंग विद दैट अजम्पशन, अनलेस ऑफ कोर्स इसी चीज को जो है कोई कॉन्टेस्ट करना चाहे कि देर आर पीपल, सेम पीपल हु आर नॉट लुकिंग फॉर हैप्पीनेस इन देयर लाइफ। कोई इसको कॉन्टेस्ट करना चाहेगा, कोई इसको अ, हम्म, या इस आइडिया को ऐसे कोई कोई, या चले बाहर का तो छोड़ देते हैं। अभी हम लोग जो यहाँ पर मौजूद हैं अपनी बात कर लेते हैं। इज देयर एनीवन हु इज नॉट, हु इज नॉट सीकिंग हैप्पीनेस इन हिज लाइफ? यहाँ पर कोई ऐसा है जो नहीं कर? Okay, in the interest of time, I have to move on if there are no responses. Maybe no one. Okay. Okay, I safely assume that. I assume that. Or maybe I should deduce that. Uh, Harsh, you are not looking for happiness or looking for happiness? He said me, so I said everyone, maybe no one, me. You're looking for happiness. Okay. Yeah. All right, all right. They're all sane people out here. They're all sane people out here. I understand. So, कोई भी ऐसा नहीं है, all sane people out here. So everyone is basically looking for happiness. So ठीक है. With that, we can agree on that, and then with that agreement, we are हम आगे चलते हैं. Okay. तो अब ये जो खुशी है, जो जिंदगी का जो लुत्फ है, मजा है, ये क्या सभी का एक जैसा होता है या सबके इसके जाविये, एंगल्स अलग अलग होते हैं? आप लोगों का क्या एक्सपीरियंस है, क्या तजुर्बा है? इट्स डिफरेंट, राइट? It's different. Yeah, yeah. Anmol, thank you. Yeah, it's different. Okay. Okay. Different. Sheetal, thank you. Different. So how are they? They differ. Yeah, Simran. Yeah, they do differ. Okay, fine. So let's start with that. Like where, like what may be the different ways of looking at it? Okay. Because that's what we are. The journey is the journey of happiness. Okay. And how different people are seeking it. को हम लोग कैसे जो है उसका जो रास्ता जो है कैसे तय करते हैं? डिफरेंट लेवल्स. ओके. स्पिरिचुअल, इंटेलेक्चुअल, मेंटल, फिजिकल. मैं नीचे से ऊपर शुरू करते हैं. ठीक है, जैसे स्टेयर्स होते हैं, जैसे सीढ़ी होती है, तो स्टार्टिंग फ्रॉम द बॉटम, बॉटम अप. फिजिकल लेवल ऑफ हैप्पीनेस. सो भागवत गीता recognizes this as a physical level of happiness, जिसको अगर हम एक मतलब प्रोवर्ब में, मैक्सिम में अगर हम इसको समराइज कर दे तो इट इज ईट ड्रिंक एंड बी मैरी. खाओ पियो ऐश करो. कौन मतलब किससे इससे ऐतराज है? कौन ऐतराज करेगा इससे? खाओ पियो मौज मौज करो. इससे फिजिकल लेवल पे जो चीज होती है, खाओ पियो मौज करो, इट्स फिजिकल लेवल. नाउ एक डिफरेंट लेवल है इससे आगे का. ओके. विच इज द मेंटल लेवल. म्यूजिक, आर्ट्स, पोएट्री, स्पोर्ट्स, यू नो, इसमें जो मिलने वाला जो जो हैप्पीनेस है, यानी स्पोर्ट्स, द एक्ट ऑफ स्पोर्ट्स फिजिकल है, मगर जो जीत की खुशी होती है, जैसे ऑन द मेंटल लेवल, जैसे वो सेम चीज. लाइक आई माइट बी, यहाँ पर कोई ऐसा है जो अच्छा म्यूजिशियन हो, गिटारिस्ट, somebody who plays any musical instrument? हाँ, वर्षा. Yeah, go ahead. Sorry. Somebody, okay. Maybe somebody who, so music, or you might be knowing, you know, the music पसंद तो सबको होता है generally. Okay. So it's the instrument is played on a physical level, but the activity that generates that pleasure, वो जो लुत्फ जो है, वो mental level पर generate होती है.
See? So mental happiness, arts, you know, poetry, प्योरली मेंटल लेवल से वो चीज आती से जैसे एक डिफरेंट लेवल का हैप्पीनेस। इंटेलेक्चुअल डिबेट करना खास तौर पर कई बार, है ना, इंटरेस्टिंग, लाइक बहुत ही इंटेंस होती है जब डिबेट्स हम देखते हैं हम, लाइक जब हम यूट्यूब पे डिबेट्स देखते हैं या कभी हम पार्टिसिपेट कर, कोई है यहाँ पर जिसने डिबेट्स पार्टिसिपेट करते हैं, यहाँ पे यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हैं जो यूजुअली डिबेट्स में पार्टिसिपेट करते हैं, एक्सपीरियंस हो डिबेट में पार्टिसिपेट करने का? And raise your hands if you are, if anybody is out here. Yes, Harsh is there. Yeah, yeah. Debates में participate करने का experience है. Okay, okay. So yeah, is it? It's like उसका अपना एक उस challenge को meet करने का अपना एक मजा होता है, एक thrill होता है, एक kick होती है. Yeah, so that's what it is. See, so it's on an intellectual level. It's like, how many of you here play chess? Chess players out here? Yeah, Simran is there. Good. Okay. So yeah, chess. Yes, like क्या वो थ्रिल होता है चेस का, देखते हैं ना, इट्स लाइक उठता नहीं है बंदा वहां से। चेस जब तक बाजी खत्म नहीं होगी वो एक और, अरे एक और, नहीं तो अच्छा ओके फाइन लेट्स फिनिश दिस। दैट्स ऑन इंटेलेक्चुअल लेवल। So yeah, good in chess. Yeah, maybe hopefully like we will play someday. So the idea, so let's go back to the same thing, और मैं ये डिफरेंट चीज मैंने ये जस्ट इसको एक्सपैंड किया, बट लेट्स गो बैक टू दैट वेरी बेसिक थिंग। नाउ से फॉर एग्जांपल मैं अब आपके सामने एक सिचुएशन प्रेजेंट करता हूँ। ओके, आई एम जस्ट प्रेजेंटिंग अ सिचुएशन। फिजिकल हैप्पीनेस जैसे हमने देखा, जैसे खाना पीना, लाइक हमें पसंद होता है। ओके फाइन। सो नाउ जस्ट इमेजिन, ओके, कि आप जो है कराची के टॉप रेस्टोरेंट में, सुनी थी कराची को अच्छा रेस्टोरेंट, गिव मी ए गुड, गिव मी गुड वन। रॉयल समथिंग है ना एक कराची में, द रॉयल समथिंग, मैं भूल रहा हूँ उसका नाम। इट्स अ गुड रेस्टोरेंट, सुनी थी, डू यू रिमेम्बर? PC Hotel, I think. पीसी रॉयल शायद ऐसे ही है उसका रेस्टोरेंट। ओके ओके फाइन। सो या सो अब आप समझे, फर्ज कीजिए आप पीसी रॉयल में बैठे हैं, ओके, एंड यू हैव ऑर्डर्ड योर लंच सबके लिए। ओके, ठीक है, आपने लंच ऑर्डर किया है, 4 कोर्स मील आया है आपके सामने, ठीक है, स्पॉन्सर्ड है सारा कुछ। ओके, ट्रीट, यू आर बीइंग ट्रीटेड, फिजिकल लेवल है, ठीक है ना, फिजिकल लेवल। ओके, और अचानक, ओके, आपको खबर आती है, इमीडिएटली मैसेज आता है आपके फोन पे कि आपका एग्जाम्स के रिजल्ट्स आउट हो गए हैं। Oh shit. And you have not, unfortunately, you couldn't negotiate it successfully. So अभी जो आपका ये वाला जो खाना है, इसका क्या हाल होगा? A food without taste. Yeah, it's just like it will start, suddenly it will start to taste bitter. Yes, sir. Not taste bitter. You see that choco chips, that's going to taste bitter. Why? तो क्या क्या वो फिजिकल जो जो एलिमेंट्स थे, जो वो इंग्रेडिएंट्स थे, क्या वो बेटर हो गए हैं? नहीं, इट्स No. जस्ट, या इट्स जस्ट फ्रॉम द फिजिकल लेवल you have actually graduated to the mental level, this one, you see, and mentally if you are not satisfied,
तो that physical satisfaction is not good enough for you, है ना? इससे ये ऊपर आ गया है और इसने इसको सबड्यू कर लिया है। और ऐसे सर इफ यू थिंक अबाउट लाइक रिजल्ट अच्छा आ जाता है तो उसका टेस्ट और अच्छा बढ़ जाता है। उल्टा हो जाएगा। वही सेम ना, मतलब मेंटल वो हाउ इट्स लाइक इट इज द सेम चॉकलेट चिप्स, कुछ भी नहीं बदला है, बट उसका टेस्ट जो है डबल हो जाएगा। या मैं बैठा हूँ यहाँ पर क्या कहते हैं रेस्टोरेंट में अपने फ्रेंड्स के साथ, अचानक जो है फोन आता है और पता चलता है खुदा खास्ता मेरे घर में मतलब आग लग गई है, शॉर्ट सर्किट हो गया, आग लग गई है, या सिलेंडर फट गया, आग लग गई है। तो मैं क्या करूंगा? भागूंगा घर की तरफ, बाढ़ में गया, क्या कहते हैं, क्या खाने के लिए बुलाया मेरे को? Yes, sir. Because mentally I'm so disturbed. I'm like, my priority immediately will change. So the level of happiness depends on what level you are functioning. बात ये हो रही। अब मैं और आगे चलते हैं, बढ़ाते हैं इसको, लाइक लेट्स अप द एंटी। सो मैं मेंटली बहुत डिस्टर्ब हूं, ओके। मेरा एग्जाम का रिजल्ट खराब है, आई कुडंट नेगोशिएट दैट, और अब मैं घर भाग रहा हूँ या मैं यूनी भाग रहा हूँ देखने के लिए क्या हुआ, ठीक है। रास्ते में मेरी गाड़ी ठुक जाती है, ठीक है ना, कार हिट कर जाती है मेरी। तो कार हिट करने के बाद जनरली पाकिस्तान की सड़क पे क्या होता है, जब दोनों की दो दो लड़कों की गाड़ी हिट होती है, किसी की भी गाड़ी हिट होती है, उसके तो फौरन लाइक बाद कि हाँ, भाई तूने कहाँ देख के गाड़ी चला रहा है। हाँ, और मीठी यानी बहस मीठी शुरू हाँ बहस मीठी शुरू होती है बोली। ना। हाँ, जी फिर जी। बहस शुरू होती है ना, माँ बहन की गालियां देंगे और बाहर निकलेंगे, पहले झगड़ा शुरू होगा, ठीक है ना। हाथापाई होने से पहले कम से कम झगड़ा शुरू होगा। यस सर। यस राइट। या इंटेलेक्चुअल लेवल पे आ गए इंटेलेक्चुअल लेवल पे। या यस यस। उस टाइम आप ये भूल गए कि मैं एग्जाम में फेल कर गया हूं, मैं यूं जा रहा। तो अभी क्या हुआ, प्रायोरिटी पहले चेंज हो इसको गई। ठीक, हाँ हाँ, तो अभी इसको ठीक करके जाऊंगा। पॉइंट। Getting my point, getting यस यस यस। what is happening. So the previous level where you were operating physical से mental पे, और फिर अब mental से आप intellectual पे आ गए। Before it may again generate degenerate to physical, जब लाइक हाथापाई होगी वो अलग चीज है, मगर उससे पहले अब यहां तक आ गए। सो यू सी, सो इससे ये बेसिकली इस पूरे एक्सरसाइज का जो मकसद था ये समझाना था दैट वी ऑपरेट ऑन डिफरेंट लेवल्स एंड ईच लेवल is superior to the other in the sense that it can affect the ones which are inferior to it, वो उसको ओवरकम कर सकती है। यस सर। Getting the point? So या it's like the mental level can supersede the physical and the intellectual can again trump over the mental. तो ये बेसिक है। अभी हम स्पिरिचुअल पे नहीं गए, मैं पहले ये वो चीज जो हम रोजमर्रा की जिंदगी में जिससे हम मतलब जो दो चार हो रहे होते हैं तो उसकी बात करें। तो बेसिक ये ठीक है। सो अब इसके बाद जो है ये तीन लेवल्स यहां तक क्लियर है, यहां तक लाइक यू या हैव एनी यस। क्वेश्चंस कमेंट्स? अदरवाइज देन I'll move ahead. क्लियर। ऑलराइट, मैं एक बार देख लूं यहाँ पर कमेंट्स में क्या आया हुआ है। फेयर इनफ, फेयर इनफ, for which there is no one. Anyway, so आगे चलते हैं। So now let's go to hitherto unknown territory, yeah, which like they have got different ideas about. So this is a spiritual level जहां पर generally इसके अंदर क्या क्या चीजें आती हैं, प्रेइंग, योगा, रीडिंग स्क्रिप्चर्स, चैंटिंग। अब ये चीज जो है ऐसा, जब लोग इन तीनों लेवल्स पे, जो नीचे के जो तीन लेवल्स हैं, ठीक है ना, इन लेवल्स का कई बार वो जो ये तीन लेवल्स में अगर दे आर डिस्टर्ब्ड और इन सम केसेस दे आर वेरी सेटिस्फाइड, मोस्टली डिस्टर्ब जब होते हैं, दे अप्रोच दिस fourth level, which is the
स्पिरिचुअल स्पिरिचुअल। लेवल। अब वो जनरली आप देखो ना एग्जाम से पहले, ठीक है ना, सो सब भाई चले जाओ यार, जहां पर भी जाना है, जहां भी माथा टेकना है, किसी पीर की दरगाह में चादर चढ़ाना है, कुछ भी डोनेशन देना है, कोई क्या कहते हैं बेचारा कोई भिखारी, ठीक है ना, कशकोल लेके मुझे मिल गया, दे दो यार, कोई बात नहीं, जा रहा हूँ अच्छे काम के लिए, एग्जाम के लिए, भाई दुआ करना हमारे लिए, ठीक है ना। सो बिकॉज कोई चांस नहीं लेना चाहता, कोई चांस नहीं लेना चाहता। सो वी वुड प्रे ourselves, और वी वुड आस्क अदर्स टू प्रे फॉर अस। ओके, सम पीपल जो अपना क्या कहते हैं बॉडी माइंड बैलेंस रखने के लिए, इंटेलेक्चुअली अपने आप को कूल रखने के लिए योगा एक्सरसाइजेस करते हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करते हैं, दे फाइंड इट स्पिरिचुअल, पीसफुल, काम कोशिश करते हैं। कई लोग पढ़ते भी है, कुछ लोग जो है लाइक दे आल्सो रीड different kinds of religious books. They read according to their faith and according to their understanding and conviction. तो कुछ पढ़ते कि चलो इससे जो है कुछ कुछ अच्छा होगा, क्या होगा नहीं होगा नहीं पता, चलो एक्सपेरिमेंट करते, तो ये भी करते कई लोग जो है, मतलब भगवान का नाम अल्लाह का नाम लेते हैं, कुछ करते हैं कुछ ना कुछ अपने तरीके से कि चलो कुछ तो करेक्शन, कोई हायर पावर है अगर तो है। सो ये डिबेटेबल है कि है कि नहीं है, मगर लोग रिस्क नहीं लेना चाहते, कई बार कहते भाई क्या पता अगर है तो अगर है तो भाई ऐसे कर। एनीबॉडी हैव हर्ड अबाउट पास्कल्स वेजर? पास्कल्स लॉ तो सुना होगा, पर पास्कल्स वेजर सुना यस है यस किसी? सर, यस। लॉ सुना है पर मेजर्स आई थिंक मैंने नहीं सुना। ओके, पास्कल्स लॉ इज डिफरेंट एंड पास्कल्स वेजर। सो पास्कल्स वेजर इज द सेम, लाइक सेम पर्सन, पास्कल से जो है पास्कल वेजर का जो लॉ वो है, वेजर जो है वो इसी कॉन्सेप्ट पे है, गॉड के एग्जिस्टेंस पे पास्कल वेजर है। तो द वेजर इज कि इफ आई लिव अ लाइफ थिंकिंग दैट गॉड एग्जिस्ट एंड एट द एंड ऑफ द लाइफ आई फाइंड आउट ही डजंट एग्जिस्ट, ओके, एट द एंड ऑफ द लाइफ मैं मुझे ये पता लगता है कि भगवान होते ही नहीं है, पूरी जिंदगी में ऐसे जी रहा था कि भगवान नहीं है, तो क्या नफा नुकसान है? एक तरफ आ जाओ, वेजर है ना, ठीक है, तो वी विल बी वेइंग जुआ है। एंड दूसरा उसका लिविंग अ लाइफ थिंकिंग दैट गॉड डज नॉट एग्जिस्ट ओनली टू फाइंड आउट एट द एंड ऑफ द लाइफ ही एग्जिस्ट। आई बात समझ में? यस सर। दो तरीके की जिंदगी है कि एक तो मैंने जिंदगी ऐसे जी कि भगवान है ही नहीं, कोई नहीं है, कोई खुदा कोई कुछ नहीं है, और लास्ट में जो है मैंने देखा कि नहीं है, तो क्या नुकसान हुआ? मैंने, ठीक है ना, मैं ये सोच के जी रहा था कि है, और लास्ट में मुझे पता चला कुछ नहीं है, तो क्या नुकसान हुआ बनस्बत के इसके कि मैं ऐसी जिंदगी जी रहा था सोच के कि कुछ क्या कहते हैं कुछ नहीं है, और जिंदगी के आखिरी पल पे मुझे पता चला है। अब क्या होगा? सर वो खुशी का लेवल एकदम बढ़ जाता है ना, कि इट्स लाइक के कुछ नई चीज मिल जाती है। हाँ, बट आई लिव माई लाइफ थिंकिंग दैट देयर इज नो गॉड, सो देयरफॉर मैंने अपनी लाइफ सर इट्स गॉडलेस लाइक लाइफ इट्स लाइक के हम पेरेंट्स से एक्सपेक्टेशन नहीं रखते कि वो बर्थडे पे कोई गिफ्ट देंगे, पर अचानक से वो हमें कोई बड़ा सरप्राइज दे देते हैं। Yeah, so that the only thing is like we expect it to be a pleasant surprise, not an awful shock. यस सर। See, so ये बात है। So that's the argument कि so spiritual ये सोच के बहुत लोग इस तरफ जाते हैं कि अगर अगर हुए तो इससे अच्छा है कि पंगा मत लो, ठीक है ना, दोनों तरफ कर लेते हैं, इधर का भी कर लेते हैं, इधर का भी कर लेते हैं, कुछ कर लेते हैं, कुछ स्पिरिचुअल भी कर लेते हैं ऐसे। सो कई लोग इस तरीके से इस आइडिया के साथ, ठीक है ना, लोग स्पिरिचुअलिटी को अप्रोच करते हैं, रूहानियत को इस तरीके से, उनका जो जाविया होता है वो इस तरीके का होता है, यहाँ चलो अगर हुआ तो ठीक है देख लेंगे तब, एंड यू नो, सो दैट बेसिक आइडिया इज
स्पिरिचुअल लोग इस तरीके से सोचते हैं कि शायद ये ऐसा हो, वो उसके लिए वो ये तौर तरीके जो है वो इस्तेमाल करते हैं। और भी है ओके, और भी है। चलिए अब हम एक बिल्कुल दूसरे मौजू पे चलते हैं, एक डिटूर है। बाद में ये सारे जो ये ब्लॉक, मैं भी ब्लॉक्स बना रहा हूँ, ठीक है ना। दिस इज वन वन ब्लॉक, लेवल्स ऑफ हैप्पीनेस वाला जो था वन ब्लॉक है। इसी से जुड़ा हुआ है दूसरा, लाइक जिक्सा वो मैच करेगा। ये तो हो गया जैसे हम ह्यूमन लेवल पे जो है, ठीक है ना, कि हम ऐसे हम अपने हैप्पीनेस, खुशी जो है हम ऐसे तलाशते हैं। आइए एक बार एक मवाजना किया जाए जानवरों के साथ। ओके, there are similarities between humans and animals because like after all man is considered, sociologically man is considered a social animal. Okay, जब सोशियोलॉजी पढ़ते हैं तो हम देखते हैं मैन इज अ सोशल एनिमल। तो अब what are the similarities between the human beings and an animal? बेसिक, बहुत ही रूडिमेंट्री जस्ट फॉर सेक ऑफ कंपैरिजन। there's no question of like disparaging ह्यूमैनिटी बहुत सुपीरियर है, बट सम सिमिलैरिटीज इन चार चीजों में अगर आप देखो, ईटिंग, स्लीपिंग, मेटिंग एंड डिफेंडिंग, बेसिक नीड्स, जिसको आप ह्यूमन राइट्स भी कह सकते हैं और जिसको आप एनिमल राइट्स भी कह सकते हैं, ठीक है ना। ये कॉमन चीज है जो ह्यूमन राइट्स एंड एनिमल राइट्स दोनों में कॉमन पड़ता है। राइट टू ईट, राइट टू रेस्ट और स्लीप, राइट फॉर मेटिंग, ओके, यानी कि अपनी पॉपुलेशन बढ़ाना, और टू डिफेंड वन सेल्फ। ओके, तो कोई फियर है, कोई इनसिक्योरिटी है तो अपने लिए सिक्योरिटी का बंदोबस्त करना। तो ये चार चीजें जो है हर किसी के लिए बराबर, तो अभी तक जो है सिविलाइज्ड ह्यूमन सोसाइटी में ये राइट्स दोनों को दिए जाते हैं। तो सिमिलैरिटी इस तरीके से। तो अब ये बात सच है कि ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स चारों की नीड्स कॉमन है, ऑल्दो स्टैंडर्ड में डिफरेंस है ना। भाई हम प्रोसेस्ड फूड खाते हैं, जानवर भाई कच्चा खाना खाता है ना। हम हमारे लिए सोने के लिए जो है हमें बहुत एक स्पेसिफिक तरीके का अरेंजमेंट चाहिए होता है, जानवर कई बहुत ही चैलेंजिंग एनवायरनमेंट में जो है सो जाता है। ओके, तो यही सेम चीज जो है मेटिंग के लिए भी जो है जानवरों के तो केवल मेटिंग सीजन्स होते हैं, ठीक है ना। ह्यूमन बींग्स का मेटिंग सीजन नहीं होता। ओके, सो डिफेंडिंग, अब इंसान जो है डिफेंस जो है बहुत ही सेल्फ डिफेंस से लेके जो है बहुत ही ग्लोबल लेवल पे जो है वो डिफेंस के बंदोबस्त, इनसिक्योरिटी अपने दूर करने के बंदोबस्त कर लेता है। इनसे कई बार फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी दूर करने के बंदोबस्त कर लेता है, ठीक है ना, इकोनॉमिक, सो ये सब सोशल इनसिक्योरिटीज। एंड जानवर का जो है वो उसका जो इनसिक्योरिटी है वो उसका इलाज जो है उसके अपने खुद के हाथ, दांत, पंजे, यही है। इसी से जो उसने कर लिया, अदरवाइज इट विल, वो आइदर फ्लाइट होता है, वरना वरना फिर फाइट होता है। अगर भाग सकता है तो भाग जाता है, वरना लड़ता है, कॉर्नर कर लेता है। तो ये बेसिक मतलब मैकेनिज्म जो है वो इवॉल्व है इंसानों के, जानवरों के बाद रूडिमेंट्री बट बेसिक फंक्शंस। सो अब जो है महाभारत में एक श्लोक आता है, ये एक संस्कृत श्लोक है, मैं आप लोगों के लिए पढ़ देता हूँ एंड देन आई विल कम विद द ट्रांसलेशन। आहार निद्रा भय मैथुनम च समन्यम एतत् पशुभिः नराणां धर्मो हि एतत् अधिको विशेषो धर्मे नहीं ना पशुभिः समान। तो दिस महाभारत जहां से भागवत गीता निकल रही है, इसीलिए वे लाइक जस्ट रेफरिंग टू दैट वेरी द सोर्स बुक, ठीक है, सोर्स पे जा रहे हैं, विल कम बैक टू द मेन सब्जेक्ट ऑफ गीता। तो महाभारत ये कह रहा है आहार निद्रा भय मैथुनम, दो चार चीजें जो है, यानी कि खाना, ओके, आहार निद्रा सोना, ओके, भय डर या डिफेंस अपना, ठीक है, और मैथुनम मेटिंग, ओके, चार चीजें ये कॉमन है इंसानों में और जानवरों में, जो अभी हमने देखा कि कॉमन फंक्शंस है, ठीक है। बट धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो, ओके, बट देर इज वन मोर थिंग, अ सेंस जो ह्यूमन बींग्स को दी गई है,
They are considered superior only when they inquire about the absolute truth. Dharmo hi tesham. The sense of duty, the sense of dharma. Okay. अधिको विशेषो. ये एक ज्यादा है, अधिक का मतलब ज्यादा है. ओके. और विशेषो खास भी है. ये ज्यादा एक खासियत है जो इंसान को जानवर से बिल्कुल जुदा कर देता है, क्योंकि ये जानवरों में पाया ही नहीं जाता. इसके साथ कोई कंपैरिजन नहीं हो सकता. So therefore that makes it special, the human beings. And dharmena hi na pashu bhi sabha. But agar if he doesn't have that basic sense of duty or dharma, then he's like an animal. Polished, far more superior, but in terms of comparison, you can still compare him with an animal. तो एक स्पेसिफिक ट्रेट इंसान को दी गई है जो जानवरों को नहीं दी गई है. That's what it is saying. And therefore, इस पे इस जो स्पेशल ट्रेट है of the sense of duty और dharma, इस पे built upon किया जा रहा है. Okay, that's where we are building upon. Question, comments, rejoinders. Sir, can you summarize it? The same thing. Except somebody wrote something man. Screen पे. Okay. So I just said the difference between the animals and the human beings may be many, but in this particular context, it is talking about the sense of duty or dharma that make that really classifies human beings in a different category. Okay, got it. Yes. That's one. There may be 50 other things, but we are Yes. focusing on this one aspect Yes. for the sake of this discussion. All right. Okay. So now, once this is established, then we can talk about this higher intelligence. जिसको हमने अभी देखा, this one specific thing. Okay? His inquiry, his ability to inquire about the absolute truth. It's like the idea of what happens after death. You know, this inquiry. We have no reasons to believe that like animals have that thing. कोई ऐसा स्टडी नहीं हुआ है, कोई ऐसा पैटर्न जो है डिस्कवर नहीं किया गया है जिसके अंदर जो हमें ये मिले कि जानवर जो है वो फियर ऑफ डेथ जरूर होता है. ऑब्वियसली हर किसी को फियर ऑफ डेथ हो, इसी वजह से डिफेंस है. बट व्हाट हैपेंस आफ्टर डेथ, और हाउ डिड आई लाइक कम टू बी हियर, ये इंक्वायरी जो है अभी तक कोई ऐसा, कम से कम ऐसा कोई पेपर या कोई मेरे नजर से नहीं गुजरा है कि जिसमें ये चीज जो है कि हाँ जानवर दे ऑल्सो डू थिंक अबाउट दिस. तो हायर इंटेलिजेंस का मतलब ही यहां पर क्या है, टू फाइंड आउट द कॉज ऑफ सफरिंग. फर्स्ट थिंग, एवरीबडी इज सफरिंग. इंसान भी सफर कर रहे हैं अपने तरीके से. सफर मतलब इंग्लिश वाला सफर, हमारे उर्दू वाला सफर नहीं, ठीक है ना. तकलीफ झेल रहे हैं, मुश्किलों से दो चार हो रहा है. जानवर भी हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है. जानवर क्या मतलब, दुनिया में जितने भी कायनात में जितनी भी स्पीशीज है, सभी किसी ना किसी मुश्किल से दो चार हो रहे हैं. सभी लोग जो है, ठीक है ना, तकलीफ भुगत रहे. मगर ढूंढना उसका इलाज, वो हम देखते हैं वाहिद जो है वो इंसान ही इसके लिए काबिल दिखाई देता है. एटलीस्ट हमारी नजरों में जनरली सबसे ज्यादा काबिल अगर देखें तो इंसान होता है. सेकेंड, टू इंक्वायर द पर्पस ऑफ लाइफ. तो भाई वही जो बात है कि जिंदगी का मकसद क्या है. खाओ पियो ऐश करो के आगे भी कोई मकसद है क्या. और वो हमने देखा कि जब खाओ पियो ऐश करो कर रहे होते हैं और जब कोई मेंटल लेवल पे कोई चैलेंज हमारे सामने दरपेश होता है तो हमारा खाओ पियो ऐश करो जो है वो उस वक्त जो है हमारे दिमाग से उड़न छू हो जाता है. Yes, sir. तो तीसरा क्या है, क्या हम ताउम्र, ता जिंदगी, ता कयामत ओके खुश रह सकते हैं. वही क्वेश्चन.
ये जो खुशी जो मेरी आज की है, तो क्या ये ता जिंदगी ता उम्र ता कयामत चल सकती है? क्या कोई ऐसा तरीका है? सर उमेश, उमेश्वर, अ, कौन है? मेर ओके, या हर्ष, गो अहेड। सर मेरा सेल्फ एक्सपीरियंस है लाइक के अभी मैंने लिटरली लास्ट जो मेरे 2 डेज गए थे जन्माष्टमी वाले, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे गए थे। उनमें मेरी खुशी का लेवल ही कुछ अलग था, क्योंकि हर जगह से मुझे पॉजिटिविटी मिल रही थी। और दैट फिर आ गया ये संडे, तो इस सैटरडे लाइक संडे आज फिर भी थोड़ा ओके हूँ। लास्ट सैटरडे आई वाज लाइक कंप्लीटली डिप्रेस्ड। एक रूम में अकेला बैठा होता और सोच रहा था कि क्या करूं, और मेंटल लेवल एकदम डिस्टर्ब हो गया था मेरा। तो ये आई होप, कंसिस आई होप आपका मंडे ठीक हो। सर सोमवार है, सोमवार तो अच्छा ही गुजरता है मेरा। I'm just saying because like like after the leave फिर आप फिर काउंटडाउन शुरू होता है ना, कब संडे आएगा। सर इट्स वाज लाइक के 6 डेज होते हैं मेरे, तो उसमें मैं अपना लाइक 6 दिन मेरे जिम भी होते हैं, तो मैं वो जिम अटेंड करता हूँ। संडे को जिम भी ऑफ होता है, तो बंदा कंप्लीटली डिस्टर्ब हो जाता है। Okay, so you have something here. There's some sort of mental exercise going on. यस। Okay, thank you. So yeah, so जो हम बात कर रहे थे basic. So to get eternal happiness का ये मुमकिन है? Just like give me a second, excuse me. पानी पी लो. Sorry. Yeah, thank you. So um, so that ये basic, बहुत basic बात करें, बहुत basic about happiness. Okay. तो अब इस happiness के आड़े क्या आता है? अब देखते हैं वो happiness to be always free from problems, है कि नहीं? प्रॉब्लम और हैप्पीनेस तो साथ साथ नहीं चल सकती, क्योंकि आप आपका हैप्पीनेस को जो है, जो सबसे जो चैलेंज करेगा, वो प्रॉब्लम का कॉन्सेप्ट चैलेंज करेगा, राइट? प्रॉब्लम्स मेक अस अनहैप्पी। गेटिंग माय पॉइंट? समटाइम्स प्रॉब्लम्स में भी एक चैलेंज जिसमें मैं अपने आप को एलिवेट कर सकता हूं, बट वी विल सी द नेचर ऑफ प्रॉब्लम यहां पर, ठीक है? विल सी यस सर। प्रॉब्लम्स विच आर सरमाउंटेबल एंड प्रॉब्लम्स विच आर इनसरमाउंटेबल, जो हम जिसको हम लांग सकते हैं, और वो प्रॉब्लम जिसको हम नहीं क्या कहते हैं एड्रेस कर पाते। तो आए पहले ये देखें व्हाट इज ए प्रॉब्लम। इस केस में व्हाट इज ए प्रॉब्लम? ओके, प्रॉब्लम को आप कैसे डिफाइन करेंगे? चले ये देखते हैं, चलिए आइए, लेट्स हैव दिस। ओके, हाउ वुड यू डिफाइन अ प्रॉब्लम? वॉलंटियर्स। सर वो बात जिसे हमारा माइंड प्रोसेस ही नहीं कर पा रहा हो, जिस तरीके से हम चाह रहे हैं वो चीज़ उस तरीके से हो ना पा रही हो। ओके, सो हो सकता है वो आप नहीं प्रोसेस कर पा रहे, कोई दूसरा बंदा प्रोसेस कर पा रहा है जो जीनियस हो। सर इसलिए तो ये सर पॉइंट, इसलिए कहते हैं कि बड़ों को हमारी प्रॉब्लम प्रॉब्लम नहीं लगती। इट्स लाइक एन ओके, एक्सपीरियंस विद। या सो देन यहाँ पे आपने सब्जेक्टिव प्रॉब्लम बताई। जो मेरी प्रॉब्लम है, जरूरी नहीं है कि किसी और की भी वो प्रॉब्लम है, हो सकती है वो उसके लिए वो इतना प्रॉब्लमेटिक ऑब्स्टेकल इन लाइफ। ओके, ओके, ओके। इज देयर ए बिलीफ ऑफ कयामत इन सनातन धर्म, लाइक इज इट इन इस्लाम? A little different, little different, but we will discuss that at the end. अच्छा रहेगा, Nilesh? Okay. Obstacle in life, yeah. So obstacle in life, somebody can say, is opportunity in life. You see, है ना? है ना? Other यस thoughts? यस सर। Anything जिसको आप problem समझते हैं? Other thoughts? There are other volunteers. There are other 30 people out here. Feel free to speak up. Yeah. Feel free to speak up. Fine, fine. Who else thinks that like problem का कोई example? Yeah, what you consider is really how can problem be opportunity? Um, okay, let's have this. Um, नीलेश को नीलेश को कफ है, ओके? या नीलेश को ब्रोंकाइटिस की शिकायत है, ओके? प्रॉब्लम है ना? ठीक है। जो नहीं हो रहा वो भी प्रॉब्लम है, और जो हो रहा है वो भी प्रॉब्लम ही है।
अम, तो फिर सब कुछ ही प्रॉब्लम हो गया। ओवर थिंकिंग इज ए प्रॉब्लम। Yeah, maybe like, but not everybody is overthinking. Okay, we have got people in this world who don't think at all. You see, you see, there are people who don't think at all. ये सर जो होगा देखा जाएगा। Uh, ऐसे भी है। Sir, I don't know. imagination can be a problem. Come again? Imagination can be a problem. Like you Yeah, start imagining things imagination can be a problem, without, but मतलब वो चीज कभी होनी ही नहीं है फ्यूचर में, लेकिन आप सोच के बैठ गए हो कि यार ऐसा तो होगा, या आपने imagination, थॉट बना लिया है, थॉट प्रोसेस आपका चल रहा imagination, imagination can be such a big strength. Unless you imagine something, you will never reach there. है अब नेगेटिव। बताओ। पॉइंट है सर, पॉइंट। वो नेगेटिव जो है वो तो आप कह रहे हो नेगेटिव है। There are people who are, you are looking for imagine, that's called creativity. Get पॉइंट। my point? है ना? So subjective idea है। देखो आप लोग जो एग्जांपल्स दे रहे हैं, प्रॉब्लम्स है वो, मगर वो सब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स है। एक के लिए है, दूसरे के लिए नहीं है। See, या you जो are मैं बात you are करने लगा हाँ था talking. गॉट नीलेश के लिए, See, जो मैं see, नीलेश you के लिए are बात talking. कर, You are talking about what is the problem, and then you are asking us to be positive about it. How can you be positive about it when you're asking us मैंने for the तो problem? कुछ बोला ही नहीं है। मैं तो नहीं नहीं नहीं, लेट मी करेक्ट यू नहीं राइट नहीं। हियर। I didn't made any judgments about what is wrong and what is right. अभी मैं या वहां नहीं जा रहा हूं। अभी हम प्रॉब्लम को डाइसेक्ट कर रहे हैं। आप यस सर। प्रॉब्लम लेके आ रहे हैं और मैं कह रहा हूं प्रॉब्लम आपकी हो सकती है, पर वो सब्जेक्टिव है, क्योंकि वो किसी के लिए अपॉर्चुनिटी है। जैसे वही बात हुई ना कि अगर नीलेश को जो मैं बात कर रहा, अलाउ मी टू कंप्लीट दिस। आपको ब्रोंकाइटिस है तो आपके लिए प्रॉब्लम है, मगर अगर यहां पर सुनीति डॉक्टर है, उसके लिए अपॉर्चुनिटी है। यस सर, पॉइंट। तो जो मरीज नहीं होगा तो डॉक्टर तो भूखा मर जाएगा। पॉइंट। ठीक है ना? तो प्रॉब्लम सब्जेक्टिव, मैं यही कह रहा हूं। या आप लोग जो एग्जांपल्स दे रहे हैं ना प्रॉब्लम का, वो प्रॉब्लम्स हैं मगर सब्जेक्टिव है। अब देखते हैं। अब एक So, कसौटी। so, so do you या गो believe ऑन। being doctor? So do you believe being doctor is both evil and good? वो किसी और के लिए, अब वो डॉक्टर, यार वही वाली बात है ना कि वो देखो, आप डॉक्टर के पास गए हो क्योंकि आपको प्रॉब्लम है, ठीक है ना? Yes. डॉक्टर बैंकर के पास गया क्योंकि उसको प्रॉब्लम है। बैंकर सब्जी वाले के पास गया, उसको प्रॉब्लम है। समझ आई? यस सब्जी वाला डॉक्टर के पास, तो वो तो घूम रहा है ना ऐसे। सर्कल। यस सर। इट्स जस्ट लाइक सर्कुलर थिंग। सो द पॉइंट इज कि प्रॉब्लम सब्जेक्टिव है, ये हो रही है बात। सबको कोई ना कोई प्रॉब्लम है, पर शायद सबको, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि क्या कोई ऐसी प्रॉब्लम है जो सबको एक जैसा है। ये किसी ने कुछ लिखा है, मैं पढ़ नहीं पा रही। कंपैरिजन इज अ बिग प्रॉब्लम। कंपेयर, यार ये क्यों बिग बिग प्रॉब्लम है? जो टॉप पे है वो तो करेगा कंपेयर। पॉइंट है। क्यों ना करे वो कंपेयर? पॉइंट। कंपैरिजन से प्रॉब्लम किसको है? किसको इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है? नहीं। सब्जेक्टिव है, यू सी, या सब्जेक्टिव है। सो लेट्स सी। ये ऐसा नहीं, मैंने हरगिज ये नहीं कहा प्रॉब्लम्स, ये प्रॉब्लम्स है। आई एम सेइंग दीज आर सब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स। कैन देयर बी सम ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स आल्सो? लाइक कॉमन प्रॉब्लम, सबके लिए एक प्रॉब्लम है। तो तब आप किसी को यस। प्रॉब्लम कहोगे कब? सर आई हैव अ कॉमन प्रॉब्लम इन पाकिस्तान, लोड शेडिंग एंड पानी ना आना। तो ठीक है, क्या कहते गैस भूल हैं, गए, गैस भूल गए। इंडिया में नहीं है वो, जहाँ पे मैं बैठा हूँ। सर ठीक है ना? अराउंड टू माय सराउंडिंग, यस सर। सब्जेक्टिव हो गई ना? पॉइंट। सब्जेक्टिव हो गई ना? अब ये कह रही है कि सीमल कह रही है पैंडेमिक प्रॉब्लम था, जैसे कोविड है। किसको प्रॉब्लम था? एलीट को कॉम तो नहीं था। नहीं। हाँ, कॉमन मैन को प्रॉब्लम था, एलीट ने खूब कमाया। प्रभु गेटिंग माय जी, पॉइंट? या एक्चुअल में कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, इंसान खुद बनाता है प्रॉब्लम अपने लिए। चले देख लेते हैं, चले देख लेते हैं। हैविंग ईगो इज गुड और बैड? ये देख लो भाई, किसी की अचीवमेंट होगी तो ईगो भी होगी। ठीक है ना? अगर मान लो कोई कोई लड़की है, बहुत खूबसूरत है, और आप कह रहे हो भाई बहुत बहुत घमंडी है, तो भाई वो खूबसूरत है, वो तो घमंडी है।
बात वहां पर आती है जब when the beggar is even proud of his penny. हम तो भिखमंगे को भी देखते हैं जिसके पास जो है अगर क्या कहते हैं ईगो है, सिक्का आ जाए तो वो भी दिमाग अपने आप पे से बाहर हो जाता है, तो ये भी होता है इंडिविजुअल है। सर मेरा भी एक क्वेश्चन है। मेरा गो ये है ऑन। कि हम जहाँ पर रहते हैं, जब पाकिस्तान है, मुस्लिम कंट्री में, तो हमें ज्यादातर एक चीज को फोर्स किया जाता है कि समटाइम्स इस्लाम कबूल करो या हम आपको जन्नत की दावत दे रहे हैं या कुछ भी, आप हाँ हाँ कुत्तों भी ठीक है करती है। ठीक है। तो तो ये आपके लिए इसको थोड़ा लगता है इनको आपके लिए कैसे फेस प्रॉब्लम है। करें? नहीं नहीं, आपके लिए प्रॉब्लम है, पर कोई बंदा जो आयरलैंड में रह रहा है उसको नहीं है ये प्रॉब्लम। Not a problem. गेटिंग माय पॉइंट? Yeah, सब्जेक्टिव हो गई ना, point. सब्जेक्टिव हो गई। Point. सो बात प्रॉब्लम, ये जो आप लोगों ने तमाम एग्जांपल्स दिए हैं, कोई ये नहीं कह रही प्रॉब्लम्स नहीं है, मगर मैं ये दिखा रहा हूं कि ये प्रॉब्लम सब्जेक्टिव नेचर है इसका। सब्जेक्टिव समझते हैं ना, इंडिविजुअल जाती है। ओके, तो हम देखते हैं इज्तिमाई प्रॉब्लम भी कुछ होती है क्या? Common ओके, problem. हाँ, अब वो देखते हैं कि प्रॉब्लम की डेफिनेशन, इसका मतलब क्या बनेगी। अगर आप प्रॉब्लम की डेफिनेशन को अगर आप उसको कॉमन टू ऑल, नो वन वांट्स इट, नो वन कैन अवॉइड इट। Can avoid it. Okay. ऐसा नहीं कि कुछ लोग अवॉइड कर सकते, कुछ लोग नहीं कर सकते। कुछ पीपल के लिए वो अपॉर्चुनिटी बन जाती है, बाकियों के लिए प्रॉब्लम बन जाती है, और सबके लिए नहीं है। तो जब सबके लिए कोई चीज, अगर कोई प्रॉब्लम अगर सबके लिए नहीं होगी, तो सबके लिए उस चीज के लिए कॉमन सिंपैथी भी नहीं होगी। Yes, sir. गेटिंग माय पॉइंट? सो Yeah. इट्स लाइक दैट। सो प्रॉब्लम तब आप उसको एक्चुअली प्रॉब्लम कह सकते हैं जो रियली, जिसको ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम अगर हम कहना चाहें। जब हम सब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स के एग्जांपल्स दे रहे थे, नो इट्स कॉमन टू ऑल, नो वन वांट्स इट एंड नो वन अवॉइड्स कैन अवॉइड इट। कहीं पे भी हो आप दुनिया के, किसी भी माशरे का आप हिस्सा हो, किसी भी मुल्क का आप हिस्सा हो, कहीं के भी आप बाशिंदे हो, इट्स So कॉमन टू ऑल, नो वन वांट्स इट, नो वन कैन अवॉइड इट। someone comment here the stress before exams. हाँ, नहीं है, कईयों को नहीं होता, Yes. कईयों को नहीं होता, कईयों को कम होता है, कईयों को and ज्यादा if होता है। the problem Woman is driving है, on the road also a problem. Oh my God. हैं? नहीं, कई जगह की अपॉर्चुनिटी है, कई लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी है। उन उन Financial प्रॉब्लम, हाँ, कम अगेन। financial problem. वही तो कह रहा हूँ कि सबको नहीं है। हाँ, Not. So it's कईयों के hard to पास classify. कईयों Hard के to पास इतना classify. पैसा है, कईयों के पास इतना पैसा है कि वो सालों साल पैसे को आग लगाते रहे, पैसा खत्म नहीं होगा। होते हैं ऐसे फिल्दी रिच पीपल होते हैं। Yes, sir. ज्यादा दूर जाने की जरूरत है, पाकिस्तान में नहीं है। तो ऐसे ऐसे वडेरे हैं जिनकी जमीन के अंदर अंदर 3-3 रेलवे स्टेशन आते हैं। Yes, sir. उनसे जाने जाके बोलना आप क्या प्रॉब्लम क्या होता है, हंस रहा होगा आपके ऊपर। तो गेटिंग माय पॉइंट? सो हम वही बात पे वापस आ रहे हैं कि Is कॉमन टू आप climate change बताओ। climate change is common? हाँ, क्लाइमेट चेंज कॉमन फॉर whom? Everyone? हम लोग जो ट्रॉपिकल एरियाज में रह रहे हैं ना, Yes. जो सर्दी के एरिया में रह रहे हैं, उनके तो ठीक है, उनके लिए कैसे ग्लोबल ठीक है? वार्मिंग उनके लिए तो अच्छा है। अभी आप देखिए पाकिस्तान में कितनी फ्लडिंग हुई है, केपी में, वहां पे तो भाई इतने पाकिस्तान में हो रही है ना, कई कंट्रीज इंडिया में में तो नहीं बहुत हो अच्छा रही. है। इंडिया में भी हो रही है, क्लाउड बस्ट हो रहा है, जो भी। मैं एक बात बता रहा हूँ, आप ग्लोब के इस तरफ रह रहे हो ना यार, इक्वेटर के। No. Global warming and climate change are the universal issues. मैं वही इश्यू है, तो अब इश्यू है तो इसीलिए हम देख पा रहे हैं कई कंट्रीज उस पर खामोश है। क्यों खामोश है? उनको नहीं है इश्यू। तुम चिल्लाओ जिनको है, जिनके जिनके फ्लडिंग हो रही है, जिनके ग्लेशियर्स मेल्ट कर रहे हैं, वो रोए ना। जिनके पानी का सोर्स कोई ग्लेशियर नहीं है, वो क्यों रोए? Point. ऑस्ट्रेलिया क्यों रोए? बताओ ना, तो पूरा कॉन्टिनेंट है, वहां पे तो कोई ग्लेशियर नहीं है। गेटिंग माय पॉइंट? सो Yes, sir. किसी का प्रॉब्लम, और उसकी अपॉर्चुनिटी है, वो तो मंत्र जप रहा होगा कि और फ्लडिंग आए ताकि जो है आप उनसे मदद मांगो। हाँ सर. So getting my point. So it's like that. Someone's problem, someone's वो
वन व्हील बाइकर्स राइडर, लाइक किसी के लिए अपॉर्चुनिटी है, किसी के लिए प्रॉब्लम है. So व्हाट get, इज अ तो वन हम व्हील बाइक? you're going back to the same thing. Subjective, आप समझते subjective problem and objective problem. So which common to all, no one wants it, no one can avoid it. आप चलते हैं उन चीजों के बारे में तो कोई बात नहीं करता, इसके बारे में कोई बात नहीं करता. Problems of life, birth, death, disease, old age. अब इसको आप मैच कीजिए वो 3 जो कसौटियां मैंने रखी थी आपके सामने. Common to all, यस सर. no one wants it, यस. no one can avoid it. पॉइंट. Yeah. You see? You see? तो बर्थ दैट. Yes. यस हाँ, सर. कोई नहीं, मगर इसके बारे में कोई बात नहीं करता. सब बात करते हैं इसके अंदर जो चीजें हो रही हैं, यस बिटवीन द सर. सर्कल ऑफ बर्थ, डेथ, ओल्ड एज एंड डिजीज के बीच में का जो ट्रांजैक्शनल जो पीरियड है, सारी प्रॉब्लम वहां है. सर ये इन इतनी कॉमन है, ज्यादा ये इतनी जी कॉमन है कि अवॉइड मतलब काइंड ऑफ एंड टाइम पे याद आती है. टाइनी, आपने समझौता कर लिया इसलिए. यस सर. हम सब ने जो है समझौता कर लिया. देखो ये तो आनी आनी है, बर्थ को हमारे हाथ में नहीं है ना, डेथ हमारे हाथ में है. डिजीज भी कोई दुनिया में कोई क्लेम नहीं कर सकता कि कहीं भी उसको कोई डिजीज ना हुई हो. और ओल्ड एज किसी का बाप नहीं रोक सकता. ठीक है ना. एक ही चीज रोक सकती है ओल्ड एज को. अमृत. नहीं, हम नहीं ओल्ड एज को एक ही प्लास्टिक चीज. सर्जरी. नहीं यार, ड्रग्स लो, जवानी में फारिग हो जाओगे. ओल्ड एज को नहीं आते. ठीक है ना. ड्रग्स लो, जवानी फारिग हो जाओगे. तो गेटिंग माय पॉइंट. यस सो सर. दिस इज द काइंड ऑफ थिंग. इस पे कोई बात नहीं करती, बुनियादी चीजें. एंड यही वो चीज है जहां से रिलीजियस और स्पिरिचुअल जर्नी शुरू होती है. यही हमने पहले देखा था. क्योंकि जो हम प्रॉब्लम से बात नहीं कर रहे थे, हम सॉल्यूशंस पे बात नहीं कर रहे थे, हम हैप्पीनेस पे बात कर रहे थे. ठीक है. लेट मी ब्रिंग यू बैक इमीडिएटली टू दैट टॉपिक, है ना. हम हैप्पीनेस पे बात कर रहे थे. Yes. तो हैप्पीनेस के लिए जो ऑब्स्टेकल हमारे सामने आ रहा था वो प्रॉब्लम्स आ रही. Problem. तो जब हमने देखा कि हैप्पीनेस क्या वो इटर्नल हो सकती है, ताक़यामत हो सकती है, तो फिर हमने देखा कि उसके रास्ते में ये रोड़े हैं. Yeah. और उसके बीच में हम अपने सब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स को लेके फंसे हुए हैं. सही. अब ये भी अपने आप में ये हो गया. अब ये जो बीच का रास्ता है यार, अब तो चलो ठीक है, एक दिन तो सबने जाना ही है. ठीक है. अरे यार अभी तो चैन से जीने दो. नहीं. अब इसको क्या कहते हैं? आध्यात्मिक क्लेश. वो जो आप लोगों ने बोला, मिसेस ड्यू टू द बॉडी एंड माइंड, यस सर. मेंटल एंजाइटी. एक और है. ठीक है. डिफरेंट लेवल्स पे जो है ये. अब ये ऑलमोस्ट ये भी कॉमन टू ऑल है. किसी का फिजिकल एंजाइटी नहीं है तो मेंटल है, किसी का मेंटल नहीं है तो फिजिकल है. नहीं बच पा रहे, है ना. उसके बाद क्या है दूसरा? अच्छा चलो, अपने से परेशान नहीं है तो कोई बात नहीं भाई, दूसरा है परेशान करने के लिए. ठीक है ना. मोस्ट कॉमन सर, मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम इन कोई पाकिस्तान. ना दूसरे ने नहीं हर जगह. ये ट्रैफिक पुलिस. की तस्वीर रिप्रेजेंटेटिव पर्पस पे है. यार आपको कोई परेशान नहीं करता, मच्छर परेशान कर रहे. गेटिंग माय पॉइंट. कोई ना कोई आप अदर देन योरसेल्फ जो आपको परेशान करता ही करता है. कॉमन टू ऑल. कोई नहीं बोल सकता ऐसा परेशान नहीं करता. ठीक है. इट्स नॉट अ क्वेश्चन ऑफ लाइक गनमैन होल्डिंग. ये कोई यार इंसेक्ट इज कैन, कोई भी आपको परेशान करे. अनदर लिविंग एंटिटी कॉज्ड बाय अदर लिविंग एंटिटी, लिखा हुआ ना. ये कॉमन प्रॉब्लम. नोबडी कैन वांट्स इट, नोबडी कैन अवॉइड इट, यस. है ना. अब आखिरी ये जो आप बात कर रहे थे अभी, फ्लडिंग, फ्लडिंग, मटेरियल कैलेमिटीज आपके हाथ में ही नहीं है, जब मर्जी आ जाएगी, कर लो जो करना है. ठीक है ना.
कॉमन टू ऑल, कोई नहीं कह सकता कि हमारे यहाँ पे नहीं आएगी, किसी के भी कभी भी आ सकती है। नो वन वॉन्ट्स इट, सर्टेनली नो वन वॉन्ट्स इट, एंड नोबडी कैन अवॉइड इट। पता ही नहीं चलेगा कहाँ से हटकर आया, फिर जलजला आ गया, क्या कर लोगे? ठीक है ना? सो यस तो इस तरह, तो ये है वो बिग प्रॉब्लम्स। तो अब क्या करते हैं लोग, इन प्रॉब्लम से छुटकारा पाने के लिए या इस प्रॉब्लम को थोड़ा सा पीछे धकेलने के लिए भागते हैं इधर, और इसको स्पिरिचुअलिटी समझते हैं। ब्लैक मैजिक, ओ माय गॉड। जाते नहीं है, नहीं जाते। यस सर, पॉइंट पॉइंट। कब होता है, क्या नहीं या होता? अब मैं जानता हूँ पाकिस्तान में कितने लोग सब भागते, दम भरवाने जाते हैं, तावीज अपने वगैरह वकीलों करवाते पे हैं सर। जाते हैं, सब जाते हैं, सब कुछ क्या नहीं करते, जो लिखा हुआ है सब करते हैं। यस इसमें जो सर, लिखा हुआ है उसके अलावा दो चार एडिशनली करते हैं, एडिशनल। वो कम नहीं है। यस सर। हाँ, तो ये ढूंढते, ये पैच वर्क्स है, ये पैच वर्क्स है। अगर ये काम करते भी हैं एक बार को, चलो मैं मान लेता हूँ फॉर आर्गुमेंट सेक, तो वो भी पैच वर्क क्या है कि भाई इस कंधे में दर्द हो रहा है तो बोझ उठा के इस कंधे में रखवा दो, बराबर हो जाएगा। यही है। हाँ, बराबर हो जाएगा, कुछ देर ये वाला क्या कहते हैं, इसको आराम मिल जाएगा, फिर यहाँ दर्द होना शुरू हो जाएगा, तो इसको निकालो, यहाँ करो। तो ये शिफ्टिंग द, जैसे हम कहते हैं ना, शिफ्टिंग द ब्लेम, तो वो यस आप अपोर्शन कर रहे हैं, तो पैच वर्क है। तो ये भी हम इस तरीके से उसके पैच वर्क ढूंढ रहे हो। कितने लोग परेशान होते हैं इसको लेकर, आप अपने आसपास देखना, जो लोग परेशान होते हैं वो यही सब लेके, कोई न्यूमरोलॉजी लेके बैठा हुआ है, कोई कुछ लेके बैठा है, कुछ कर रहा है, ये कर रहा है। अब ये देखिए, ये एक जार है, ठीक है? अब इस जार के अंदर, ठीक है, टोन्स। स्टोन्स डाल दिए, ओके। यस अब अगला देखते हैं, वेरी कॉमन एग्जांपल, ठीक है? यस। और अब देखिए फाइनली, पहले वाले जार को देखिए क्या था, ये हाँ, इस वाले जार को देखिए, इसमें क्या हो रहा था? लेक्चर ले आऊंगा, लेक्चर ले आऊंगा। देखिए स्टोन्स बाहर पड़े हुए थे, कई सारे स्टोन बाहर पड़े हुए हैं ना, बड़े बड़े स्टोन देख रहे हैं बाहर पड़े हुए हैं। जी और इस वाले यस जार सर, में अरेंज प्रॉब्लम्स लाइक एकदम सीक्वेंस में वो अच्छी। कैसे हुआ, डिफरेंस क्या है इन दोनों के अंदर? सर वो चीज थोड़ी मैसअप हुई हुई है और वो एक परफेक्ट प्रॉब्लम है लाइक। क्यों मैसअप है, यही तो यस क्वेश्चन सर। है। या ये वाला जार मैसअप क्यों है? सेम अमाउंट ऑफ स्टोन्स है। सर अरेंज प्रॉपरली नहीं है। हाँ, तो अरेंजमेंट पे क्या चीज है इसके अंदर? हम छोटी छोटी चीजें दो पहले रखकर फिर बड़े मसलों को पीछे हट लेते हैं। ओके पहले ओके ओके, बड़े आई गॉट। स्टोन्स को अरेंज या किया, यस सर। आपने बड़े स्टोन्स को अरेंज किया, आप ये अपने दो छोटे लोगों का स्टोन्स पर्सपेक्टिव है, दो लोगों का तरीका है किस तरह को एक को एडजस्ट प्रॉब्लम हो गए। को लेके दो लोगों की। तो आप, हाँ, तो जब आप छोटे प्रॉब्लम्स को पापा पहले लेक्चर चीज लेक्चर ले हम तरजीह बच्चे बात देंगे, कर हम। जब आप पहले छोटे प्रॉब्लम्स को तरजीह देंगे, तो बड़े प्रॉब्लम्स के लिए आपके पास टाइम नहीं होगा। यस सर, अभी आपने शुरुआत में यही बात की थी कि लाइक एग्जाम फेल के बाद घर में आग लग जाना, तो वो लाइक बड़ी प्रॉब्लम हाँ, है। तो वही है। तो अगर आपने बड़ी प्रॉब्लम को पहले एड्रेस किया है, तो आप छोटे प्रॉब्लम्स को बीच में हैंडल कर लोगे, और जब आप वो हैंडल करना सीख जाओगे, दैट इज ट्रू हैप्पीनेस, हाँ कॉज ऑफ प्रॉब्लम्स। सर, बड़ी प्रॉब्लम्स यहीं इतना, से दिक्कतें शुरू होती है। या गो बड़ी ऑन। बड़ी प्रॉब्लम मतलब इतनी हमें इफेक्ट नहीं करती जितनी छोटी छोटी चीजें परेशान करती हैं। भाई बात वही है ना, आपने छोटे जी। को, अपने आप को अपने ऊपर हावी होने दिया, तो इसीलिए बड़े के लिए आपके पास कोई टाइम नहीं है। यस सर। तो तो अगर मेरा आप क्वेश्चन बड़े थोड़ा को पहले डिफरेंट है। हैंडल करेंगे, तो सबसे पहले देखो, सोल्यूशन की तरफ जाना तो क्या होता है, 50% उसका काम क्या होता है, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना। अपने प्रॉब्लम के डायग्नोसिस ठीक हो गई है, तो यस प्रोग्नोसिस सर। आ जाएगा ना। सर मैं अपनी पर्सनल बात शेयर करना चाहूँगा, लाइक मेरा खुद का सेल्फ एक्सपीरियंस है। पहले मैं प्रॉब्लम को मतलब लेके बैठा रहता था तो उससे मेरा माइंड और ज़्यादा अपसेट हो जाता, पर मेरी 99% ऑफ प्रॉब्लम मैं उन्हें डिले करता हूँ, वो खुद ही रिजॉल्व हो जाती है। दैट मे बी टैक्टिक्स, बट द पॉइंट इज, यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं, सब में भी
कोई रिजॉल्व हो जाए, भगवान भगवान करे कि आपकी सारी प्रॉब्लम्स रिजॉल्व हो जाए, बट द पॉइंट इज या क्यों नहीं भाई, भाई मेरा क्या जाता है आपके सारे प्रॉब्लम्स रिजॉल्व, तो अच्छी बात है, हम बात भी यही करना चाह रहे हैं यहाँ पर। बट जनरली जो है कई बार कई बार वो चीज चलती है, कई बार वो नहीं चलती। तो जो बात हम यहाँ पर यही हम करना चाह रहे थे कि हम हैप्पीनेस की तरफ जाने के लिए हमें पहले प्रॉब्लम्स को जो है मैनेज करना पड़ेगा। और इसके लिए सबसे पहले में जो सबसे बड़ी लाइफ की प्रॉब्लम्स है, बर्थ, ओल्ड एज, डिजीज, डेथ, इनको आइडेंटिफाई करके इनका बंदोबस्त करना पड़ेगा। एंड देन छोटी जो प्रॉब्लम्स है वो उसके आसपास लग जाएंगी, तो दो बिगर पिक्चर में वी विल बी गोइंग टूवर्ड्स इटर्नल हैप्पीनेस। तो आज के लिए बस मेरा इतना एक ही, क्वेश्चन है हम सर, रोकेंगे। मेरा लास्ट हाँ क्वेश्चन है, मुझे पूछना था। यस, गो अहेड, हेलो, गो अहेड, मुझे ये पूछना यू गॉट था अ कि कपल ऑफ मिनट्स। इन इस्लाम रिलीजन में ज्यादातर कहते हैं कि अल्कोहल पीना टोटली प्रोहिबिटेड है। तो अकॉर्डिंग टू अवर रिलीजन हमें ये चीज अलाउड है या पी सकते हैं या नहीं, क्योंकि यहाँ पे भंग पी जाती है, वो भी एक नशीली चीज है। तो अल्कोहल ज्यादातर लोग कह रहे होते हैं कि हमारे यहाँ हिंदू जो होते हैं वो ज्यादा पी रहे आपका हैं, जो इंडिया से क्वेश्चन ज्यादा है होते बहुत सिंपल क्वेश्चन है। Yes. मैं बताता हूँ कैसे। कि आपका क्वेश्चन आपने पूछा कि इफ आई करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, ठीक है, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, आपने पूछा कि क्या भांग पी जा सकती है, हैं। जी जी। राइट, राइट। सो अब बताइए, क्या भांग पी जा सकती कि नहीं, पीने वाली चीज है कि नहीं है, क्या वो पी जा सकती? से फॉर तो हर चीज एग्जाम्पल, जा सकती है, लेकिन वो चीज तो आपको कंट्रोल से निकाल दे तो वो चीज खराब है। नहीं नहीं, वो भी आपकी वो आपका क्या कहते हैं, आपका नजरिया पर्सपेक्टिव। है, आपका पर्सपेक्टिव। या तो अगर आप पूछते हैं कि क्या भांग पी जा सकती है, भांग है, क्या ये पी जा सकती है, तो या भांग पी जा सकती है। सर ये तो अब मैं पानी आपसे है। अल्कोहल, माई माई टर्न, अल्कोहल माई टर्न, या ये अल्कोहल है, पी जा सकती है, क्या? पी जा सकती है। नाउ माई टर्न, अल्कोहल नाउ माई प्रोहिबिटेड टर्न। नहीं। आपके लिए प्रोहिबिटेड होगा ना। मैं जो सवाल पूछ रहा हूँ, अलाउ मी टू दिस नॉट पोलाइट, अलाउ मी टू आस्क माई क्वेश्चन नो, आंसर योर क्वेश्चन। क्या भांग पी जानी चाहिए, क्या वो तो अल्कोहल पी हर जानी? किसी अपने अपने। क्वेश्चन ये है, गेटिंग माय पॉइंट। हाँ, यही आपने तो मेरा क्वेश्चन क्वेश्चन पूछा है। था, आपने क्वेश्चन पूछा था एबिलिटी पे, जी जी। कि क्या पी जा सकती है, मैंने कहा मैंने पी के दिखाई आपको। अब मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ एथिकल एंड मॉरल ग्राउंड पे क्या पी जानी चाहिए, अब इसका आंसर आप तो गेटिंग माय पॉइंट। You have to first जी learn to ask the right question। क्वेश्चन क्या है? एबिलिटी पे क्वेश्चन है, इंटेंट पे क्वेश्चन है। तो मैं ये अब आप पूछना देखें चाह कि रहा था। इसको पीना चाहना है, कोई पीना चाहता है, कोई नहीं पीना चाहता। मोरालिटी इंडिविजुअल होती है। ठीक है, मॉरलिटी इंडिविजुअल है, लेकिन मैं पूछ रहा हूँ कि हमें ये चीज अलाउड है पीना, कि फिर अल्कोहल वही पी वाली सकते हो या नहीं। फिर वही वाली बात, वही तो कह रहा हूँ। आप क्या सुनना चाहते हैं, बोल दो, मैं बोल देता हूँ। सर ये रिलीजियसली पूछना चाह रहे हैं कि भगवत गीता में इस चीज का क्या लिखा हुआ है कि हम पी सकते हैं या फिर जिक्र नहीं। है या नहीं जी। वहाँ पे लिखा हुआ है, पर कि हमें पीनी चाहिए या नहीं पीनी चाहिए। भागवत जैसे गीता यही बहुत से सवाल है। लोग ऐसे बोलते हैं भागवत चिकन गीता और अंडे का भी, कि गुड क्वेश्चन। भागवत गीता आपकी गीता में, यही हमारे क्वेश्चन कुरान में है। लिखा हुआ है कि हमारे लिए हराम है, ये हलाल है। आपकी गीता में ये चीज लिखी हुई है कि आपको एंड दैट चिकन इज खाना है, नॉट। नहीं खाना, अंडा खाना है, नहीं खाना। हाँ, एंड आई गुड थिंक क्वेश्चंस। अल्कोहल ऐसा पीना है आपका नहीं पीना, सवाल है। यही क्वेश्चन है। वी डोंट या सो प्रभु जी, okay, now my question is, wait. I have a question which will, the answer to the question is a question which will lead to that answer. क्या LSD पीना हलाल है कि हराम है? क्या इसका जिक्र कुरान पाक में है? क्या आइस का जिक्र कुरान पाक में है? क्या मोबाइल फोन का जिक्र कुरान पाक में है या भागवत गीता में है? क्या एयर कंडीशन का जिक्र नो। भागवत गीता या बाइबल में है? क्या नहीं। इंटरनेट का जिक्र गुरु ग्रंथ साहिब में है? नो। गेटिंग माई पॉइंट। सो जो जो मैंने पता है ये सवाल क्यों पूछा,
क्योंकि ये सारा क्वेश्चन जो है एक रूट से आ रहा है। वो रूट क्या है? आप आइटम को पकड़ रहे हो। भागवत गीता डजंट स्पीक अबाउट Item. थिंग्स। Yes. भागवत गीता स्पीक अबाउट नेचर। That is one of the 5 subjects of Bhagavad Gita. Bhagavad Gita deals with 5 subjects. One of the thing is nature of everything. So according to nature of that thing, चीजों को डिस्टिंग्विश किया जाता है। What is good, what is better, what is best, what is bad, what is like worse and what is worst. नेचर के हिसाब से। तो भागवत गीता जनरली हमेशा चीजों को 3 कैटेगरीज में डिवाइड करती है। व्हाट इज कॉल्ड गुड, व्हाट इज कॉल्ड पैशनेट एंड व्हाट इज कॉल्ड इग्नोरेंस। Ignorance. ऐसे चीजों का डेफिनेशन है। इट डजंट टॉक अबाउट क्या कहते हैं ये पर्टिकुलर चीज हराम है और ये पर्टिकुलर चीज हलाल है। Why? You know why? Because one man's food is another man's poison. Point. अल्कोहल हराम है तो कफ सिरप नहीं पी जानी चाहिए। Yes, sir. उसमें भी अल्कोहल होती है। बेस है ना उसका, परफ्यूम नहीं लगाना चाहिए, डेओ नहीं जी लगाना प्रभु, चाहिए। यही बोलने वाली थी कि हम लोग है ना उसके एक्सपेक्ट को देखने, जैसे कि जो ड्रग्स हम लेते हैं वो भी तो एक तरीके का नशा ही है ना, तो हम उसको सही तरीके को मानकर वो चीज यूज करनी चाहिए। तरीका गवर्न क्या करेगा? तरीका गवर्न कैसे होता है? तरीका गवर्न होता है व्हाट इज इन द मोड ऑफ गुडनेस, व्हाट इज इन द मोड ऑफ पैशन एंड व्हाट इज इन द मोड ऑफ इग्नोरेंस। Yes, sir. That which is bitter in the beginning but sweet at the end. Yes. Bhagavad Gita 18 chapter. Okay, it's considered goodness. What gives you immediate pleasure, okay, but later on becomes painful, it is in the mode of passion. And what is like troublesome from the very beginning till the end is the mode of ignorance. Okay, we can continue question answers, but then we must stop. It's already over time. Sir, last thing, Shyam Sundar. नहीं, श्याम सुंदर बहुत देर से हाथ खड़े करके बैठे हैं। Yes, sir, I yes. must, and then we have to leave. Yes, sir. Okay, sir. All good things must come to an end. Yes, Shyam Sundar Prabhu, go ahead. जी जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। प्रभु जी, मैंने लेट ज्वाइन किया था, मैं कहीं पर बिजी हो गया था। अच्छा, मेरा सवाल ये है कि जैसे कि आपने अभी बताया कि जो छोटी छोटी प्रॉब्लम होती है उनको इग्नोर करना चाहिए, उन पर ध्यान नहीं देना चाहिए। I didn't say that. I'm sorry, I'm cutting. I never said that. I said address the bigger problems first. बिगर प्रॉब्लम फर्स्ट। अच्छा, जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स होती है अगर वो आगे जाके बड़ी हो जाए तो वो भी तो एक मसला हो जाता है ना हमारे लिए। Yeah. क्योंकि So बाद में you have to identify. जी That's a good question. बाद में हमें ये रियलाइज होता है कि अगर ये हम काम पहले ही कर देते तो आज हम इसी मुसीबत में नहीं फंसते। ये Yeah, सब that आती है requires- बाद में। That requires intelligence. जी, वही हमने बात आपके, मुझे पता नहीं आपने कब ज्वाइन किया था, बट हमने ये मैंने थोड़ा डिस्कस लेट किया किया। Yes, sir. between the human beings and the animals. Human beings have this higher intelligence. So that's what it is. Okay, so let's call it a day for today. कल हम दोबारा मिलेंगे. Okay, Sir, we enjoy a lot, sir. so like Hare okay, Krishna. that makes 2 of us. Okay, thank you. Hare Krishna. हरि बोल। अच्छा, by the way, as I understand, हम सुबह नहीं कोई मतलब तैयार है, तो हम इवनिंग को ही कंटिन्यू कर रहे हैं। Okay, Right? sir. Okay. Okay. आज प्रभु जी संडे था इसलिए किसी ने सोए हुए join नहीं थे। किया। That's okay. Yeah. That's fine. That's fine.